Hello everyone, welcome to my channel English Talks. So let us start with the poem Death Be Not Proud. It is written by John Donne. So in this video we will do about the poet, about the poem, explanation with reference to the context, stanzas for comprehension and word meanings of the stanzas. So this is the poem written by John Donne, Death Be Not Proud. John Donne was a metaphysical poet. So this is a very important poem of John Donne. So let us start with the poem. Death Be Not Proud. So let us start with about the poet. John Donne was born in London in 1572. He was the leading light of metaphysical movement of poetry. His poetry is remarkable for its fusion of passionate feeling and logical argument. जॉन डन का जन्म लंदन में 1572 में हुआ था और मेटाफिजिकल मूवमेंट के वो पोइट थे और उनकी पोइट्री जो है मानी जाती है कि वो फीलिंग्स और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को इकट्ठा मिलाकर जो है उनका फ्यूज़न करके पोएम्स लिखते थे। मेटाफिजिकल पोइट्री की भी ये खासियत है कि उसमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है। He is a typical product of Renaissance and wrote both love and religious poems. तो जो रेनेसा मूवमेंट हुआ था, पुनर्जागरण का जो मूवमेंट हुआ था, उसका भी असर उनके पोइट्री पर हुआ था। तो वो बहुत लव और रिलीजियस पोएम्स जो है लिखते थे। He is regarded as one of the best English poets in modern age. तो मॉडर्न एज में उनको बेस्ट इंग्लिश पोइट के रूप में जाना जाता है। His poetry may be divided into two groups. तो उनकी पोइट्री को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप आर secular poems and then is divine poems. The first group comprises of songs and sonnets, the elegies, the satires, verse letters, progress of the soul, etc. And the second group comprises of La Carona, holy sonnets, etc. In Donne's poetry, there is always an intellectual analysis of emotions. तो emotions का जो बुद्धिमत्ता के साथ एनालिसिस इनकी पोइट्री की खासियत है। तो दो तरीके की पोएम्स इनकी डिवाइड की जा सकती है, सेकुलर पोएम्स और डिवाइन पोएम्स। तो चलिए अब देखते हैं अबाउट द पोएम। डेथ बी नॉट प्राउड इज़ वन ऑफ द 19 होली सोनेट्स रिटन बाय जॉन डन। ये पोएम जो है 19 होली सोनेट्स में से ली गई है। In this poem, the poet departs from the common belief that death is powerful or fearful. इस poem में ये बताया गया है कि जो common belief है कि जो death होती है वो powerful होती है और डरावनी होती है, poet इस चीज़ से agree नहीं करता है। He presents quite an opposite view saying that death is a poor and pitiable thing. बल्कि वो इससे opposite जो है एक अपना view रखते हैं कि death जो है वो बेचारी और एक बहुत ही दया करने वाली चीज़ है। The poet calls death a poor thing because, according to him, it is only a slave of fate, chance, kings and desperate people. पोइट कहते हैं कि जो डेथ है वो एक बहुत ही पुअर चीज़ है क्योंकि उनके हिसाब से वो एक दास है भाग्य की, अवसर की, राजाओं की और जो उदास रहते हैं लोग या मूर्ख लोग हैं उनके अंडर जो है काम करती है डेथ। It is a pitiable thing because it lives in the company of poison, war and sickness. ये एक बहुत ही दयनीय चीज़ है क्योंकि ये किन लोगों के संग में रहती है, जहर, वॉर और बीमारी के साथ। The poet compares death to a through which our soul passes to the other world. तो पोइट डेथ को इस चीज़ से कंपेयर करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी सोल जो है वो दूसरे संसार में चली जाती है। After death, our soul becomes immortal, which death cannot kill. डेथ के बाद हमारी सोल जो है वो इमोर्टल ही है, तो डेथ हमारी सोल पे कोई असर नहीं डाल सकती है। सो पोइट डिस्क्राइब सोल्स इमोर्टैलिटी। तो कहते हैं कि डेथ जो है वो सोल की इमोर्टैलिटी पे कोई असर नहीं डालती क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है। तो डिटेल्ड समरी देखते हैं हम पोएम की। In this sonnet, the poet says that some people have called death as powerful and fearful, but death should not be proud of its power. In fact, death is a poor thing because the people whom death kills do not die at all. The poet says that death cannot kill him. It is so because our souls are immortal. तो इस सोनेट में जो है पोइट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं डेथ बहुत पावरफुल है, फियरफुल है, लेकिन जॉन डन कहते हैं कि इट इज़ अपोजिट क्योंकि डेथ जो है वो कभी भी किसी को नहीं मार सकती है क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो अमर होती है।
In the second stanza of the poem, the poet tries to prove his point by giving some arguments. He compares death with rest and sleep. Second stanza of poem में poet कहते हैं आर्ग्यूमेंट देते हुए कि डेथ जो है वो हमारी बॉडी को रेस्ट और स्लीप दे देती है. ही सेज दैट रेस्ट एंड स्लीप आर मियर कॉपीज और पेल इमिटेशन ऑफ डेथ. तो जो रेस्ट और स्लीप हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो डल नकल हैं एक तरीके से डेथ की. Just as rest and sleep gives us joy, in the same way we must get greater pleasure from death because it is an original copy of the both. तो इसी तरीके से डेथ भी जो है इन चीज़ों की कॉपी है स्लीप और रेस्ट की, और उसके बाद वो रिफ़्रेश जैसे कर देती है हमें. इसी तरीके से डेथ के बाद रीबर्थ जो है इट इज़ रिफ़्रेशिंग. The poet gives reference of a proverbial saying that those whom God loves die young. तो यहाँ पर जो है एक लोकोक्ति का प्रयोग किया जा रहा है जॉर्डन के द्वारा. तो वो क्या रेफरेंस देते हैं इस लोकोक्ति का कि गॉड जो है जिनको जब प्यार करता है भगवान, उनकी जो मृत्यु है वो यंग एज में हो जाती है. इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा ही प्यारा था भगवान को तो इसलिए उसको जल्दी बुला लिया. सो दैट वाई इट इज़ सेड दैट टू whom God loves die young. It is so because God wants to give rest to their bones and freedom to their souls. ये इसलिए है ताकि भगवान जो है उनकी हड्डियों को और उनकी जो है आत्मा को बहुत ही फ्रीडम देना चाहता है, शांति देना चाहता है. सो अकॉर्डिंग टू द पोइट डेथ इज़ अ थिंग ऑफ जॉय एंड नॉट अ फियरफुल थिंग. तो पोइट के हिसाब से डेथ जो है एक बहुत ही जॉय की चीज़ है और डरने की चीज़ नहीं है. तो इस सोनेट में, सोनेट क्या होता है, पोएम ऑफ 14 लाइन्स. यही पोइट बार बार कह रहा है डेथ टू नॉट टू बी प्राउड, को डेथ को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि डेथ जो है वो किसी का भी नुकसान नहीं कर सकती है, वो किसी को नहीं मार सकती है. क्योंकि डेथ जब मारती है तो सोल तो अमर ही होती है, सिर्फ शरीर ही चेंज हो जाता है. In the next 4 lines of this sonnet, the poet tries to prove that death is neither powerful nor dreadful. It is a slave to fate, chance, kings, and desperate man. It lives in the company of poison, war, and sickness. It is not better way of sleep than opium and magic, so there is no reason for death to feel proud of its power. In the last 2 lines, the poet says that death is a short sleep after which we wake up in the other world. In this world, death has no impact on our souls. Here, death dies itself. तो नेक्स्ट जो 4 लाइन्स हैं इस सोनेट की, उसमें पोइट क्या प्रूव करना चाहते हैं कि जो डेथ है वो ना तो पावरफुल है ना ही डरावनी है. ड्रेडफुल होता है डरावना. इट इज़ अ स्लेव टू फेट, ये जो है दास है भाग्य की, अवसर की, राजाओं की और जो है मूर्ख या दुखी व्यक्तियों की. इट लिव्स इन द कंपनी ऑफ पॉइजन, पॉइजन से, वॉर से और सिकनेस से जो है डेथ हो जाती है. तो ये एक तरीका है जैसे ओपियम देकर या मैजिक से किसी को सुला दिया जाता है, उसी तरीके से डेथ है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेथ अपने ऊपर प्राउड फील करे. डेथ अपने आप ही मर जाती है, वो सोल को नहीं मार सकती है. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय explanation with stanzas. Death be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. तो वर्ड मीनिंग्स देखते हैं. दी मतलब तुम्हें, दी, दाउ, दाई सेल्फ, ये जो है तुमसे डिनोट करते हैं. माइटी होता है शक्तिशाली, ड्रेडफुल इज़ डरावना, दाउ मतलब तू, ओवरथ्रो मतलब फेंक देना, और किल मी यहाँ हराना से लिया गया है. तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो स्टेंजा है, ये लाइंस जो हैं किस पोएम से ली गई हैं और किसने लिखी हैं और ये किस थीम को लेकर लिखी गई हैं. सो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड, written by John Donne. The poet here departs from the common belief that death is powerful or fearful. Rather, he thinks that death is a poor and helpless thing. तो ये जो लाइन्स हैं ये डेथ बी नॉट प्राउड पोएम से ली गई हैं, जॉन डन ने लिखी हैं. और पोइट यहाँ पर जो है कॉमन जो बिलीफ है, जो आम धारणा है, उससे अलग व्यू देते हैं कि डेथ पावरफुल है या फियरफुल है. ऐसा नहीं है. रादर वो कहते हैं कि डेथ जो है पुअर और हेल्पलेस थिंग है. तो ये हमने देखा यहाँ पर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. Let us understand this stanza by explanation.
डेथ बी नॉट प्राउड दाउ सम हैव कॉल्ड दी। तो यहाँ पर जॉर्डन कहते हैं कि डेथ को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि डेथ घमंडी होती है। माइटी एंड ड्रेडफुल, माइटी मीन्स पावरफुल, ड्रेडफुल मतलब डरावनी। वो दाउ आर्ट नॉट सो, लोग कहते हैं कि तुम डरावनी हो और पावरफुल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर दोज हुम दाउ थिंकस दाउ डोस्ट ओवर थ्रो, जो ऐसा सोचते हैं वो जो है गलत सोचते हैं। डाई नोट पुअर डेथ नोर येट कांस दाउ किल मी, जो तुम हो डेथ, बेचारी डेथ, तुम मुझे नहीं मार सकती हो और तुम बिल्कुल भी जो है मुझे नहीं मार सकते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरी जो सोल है वो इतनी पावरफुल है कि उसको कोई भी डेथ कभी भी नहीं मार सकती है। तो ये इस स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि डेथ जो है उसको अपने ऊपर प्राउड नहीं करना चाहिए, वो कोई भी शक्तिशाली और डरावनी चीज़ नहीं है जैसा कि लोग मानते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। सेकंड स्टैंजा। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर बी, much pleasure than froth thee much more must flow, and soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery। दाई मतलब तुम्हारी, प्लेजर मतलब आनंद, दी तुमसे, फ्लो मतलब मिलना, सूनेस्ट मतलब जल्दी ही, बोन्स हड्डियाँ, डिलीवरी इज मुक्ति। So reference to the context, these lines have been extracted from John Donne's sonnet Death Be Not Proud. In this poem, the poet departs from the common belief that death is powerful or fearful. On the contrary, he says that death gives us joy and freedom. So explanation. In the lines under context, the poet compares death to rest and sleep. यहाँ पर पोइट जो है डेथ को रेस्ट और स्लीप से कंपेयर करते हैं। ही सेज दैट रेस्ट एंड स्लीप आर ओनली कॉपीज ऑफ डेथ, कि रेस्ट और स्लीप जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेथ की ही कॉपी है एक तरीके से। जस्ट एज रेस्ट एंड स्लीप गिव अस जॉय, सिमिलरली वी मस्ट गेट ग्रेटर प्लेजर फ्रॉम डेथ। जैसे रेस्ट और स्लीप हमें जॉय देते हैं, आनंद देते हैं, उसी तरीके से जो है डेथ से भी बहुत ही आनंद आता है। द पोइट गिव्स रेफरेंस ऑफ अ प्रोवर्बियल सेइंग दैट दोज हुम गॉड लव्स डाई इन यंग एज। तो यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है जॉन डन के द्वारा कि जिनको भगवान प्रेम करते हैं उनकी जो है यंग एज में ही डेथ हो जाती है, भगवान उनको जल्दी ही मुक्ति दे देते हैं। इट इज़ so बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू गिव रेस्ट टू देयर बोन्स एंड फ्रीडम टू देयर सोल्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान उनको जो है उनकी हड्डियों को रेस्ट देना चाहते हैं और उनकी सोल्स को जो है फ्रीडम देना चाहते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद वर्ड मीनिंग्स। Now let us start with the third stanza. Thou art slave to fate, chance, kings and desperate man, and dosed with poison, war and sickness dwell, and poppy or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke why swellest thou then? One short sleep past we wake eternally, and death shall be no more, death thou shalt die। तो वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। दाउ मीन्स तुम, स्लेव दास, डेस्पिरेट निराश, ड्वेल रहती हो, पोपी इज अफीम, चाम मतलब जादू, स्ट्रोक आक्रमण, स्वेलेस्ट घमंड करना, पास्ट मतलब कि प्रीवियस, इटर्नली हमेशा के लिए। So reference to the context, these lines have been extracted from the poem Death Be Not Proud, written by John Donne. In this poem, the poet departs from the common belief that death is powerful or fearful. On the contrary, he says that death is a poor and helpless thing. So it is almost same. Next is explanation. In this stanza of the poem, the poet says that death is not a fearful thing as some people think it. तो इस स्टैंजा में जो है पोइट कहता है कि जो डेथ है वो एक डराने वाली चीज़ नहीं है जैसा कि कुछ लोग इसको सोचते हैं। इट इज़ अ पुअर थिंग विच इज़ अ स्लेव टू फेट, रादर ये तो बेचारी सी एक ऐसी चीज़ है जो कि फेट भाग्य की, अवसर की और राजाओं की जो दास है और कुछ फ्रस्ट्रेटेड पीपल की दास है। जो ऐसे लोग होते हैं उनको जो है जल्दी ही डेथ आ जाती है। इट लिव्स इन द कंपनी ऑफ पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस। डेथ जो है वो किसके साथ रहती है, पॉइजन के साथ, वॉर के साथ और सिकनेस के साथ मतलब कि बीमारी के साथ।
के मैदान में और पॉइजन अगर दे दिया जाए तो डेथ जो है वो जल्दी आती है। इट इज़ नॉट अ बेटर वे टू स्लीप देन ओपियम एंड मैजिक। ये जो है उस तरीके से जैसे ओपियम और मैजिक से किसी को सुला दिया जाता है तो डेथ इसी तरीके से है। तो पोइट यही कहते हैं कि डेथ इज़ अ शॉर्ट स्लीप, जिसके बाद से दोबारा से दूसरे संसार में हमें जीवन मिल जाता है। तो डेथ को जो है हमारी सोल्स पर कोई भी पावर नहीं है, क्योंकि सोल्स जो है वो इमोर्टल है। तो अब देखते हैं स्टैंजास फॉर कॉम्प्रीहेंशन। डेथ बी नॉट प्राउड, दाउ सम हैव कॉल्ड द माइटी एंड ड्रेडफुल। इसमें क्वेश्चंस पूछे गए जैसे कि नेम द पोइट एंड द पोएम। तो हम देंगे द नेम ऑफ द पोएम इज डेथ बी नॉट प्राउड, इट्स पोइट इज जॉन डन। Next question is what have some called death? Some have called death mighty and dreadful. What does the poet think about death? The poet thinks that death is not mighty and dreadful. Why does the poet call death poor? The poet calls death poor because it cannot kill man. Who do not die? Those whom death thinks have overthrown do not die. तो इस तरीके से अगर स्टैंजाज आते हैं कॉम्प्रीहेंशन के लिए तो उसमें ही हमें जो है आंसर मिल जाता है क्वेश्चंस का। तो वो हमें ध्यान से करना है और ये आपकी पढ़ी हुई पोएम्स में से ही आएगा, तो ये और भी इजी हो जाता है इसको अटेम्प्ट करना। सेकेंड स्टैंजा, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट thy picture be, much pleasure than from thee much more must flow, and soonest our best man with thee to go, rest of their bones and souls delivery. So questions are, what are the pictures of death according to the poet? According to the poet, the pictures of death are rest and sleep. What do we get from rest and sleep? We get pleasure from rest and sleep. Who would meet death at the earliest? Our best man would meet death at the earliest. What happens to those who meet death? Those who meet death, their souls get free from the bondage of the body. Who is the writer of these lines? John Donne is the writer of these lines. हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वैन जब भी पोएम का या पोइट का नाम होता है तो वी हैव टू यूज़ दो स्पेलिंग्स विच आर प्रेस्क्राइब्ड इन आवर टेक्स्ट। DONNE है तो यही स्पेलिंग हम लिखेंगे, JOHN है तो यही लिखेंगे, इसमें अपनी तरफ से हम कोई ऐड नहीं कर सकते हैं वर्ड। इसी तरीके से जो टाइटल ऑफ द पोएम होता है वो भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो लिटरेचर का जो भी टॉपिक है, टाइटल है, वो एज सच स्पेलिंग होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।